So let us begin today. Continuity, okay? See, the meaning of continuity, knowing the meaning of continuity is very much necessary. I mean, it's very much required. Like without knowing the meaning of continuity, if you do this chapter, I think you will not be able to understand that properly. And yes, these are application chapters. So obviously the meaning of the chapter should be clear to you because अगर हम application नाम ही application और तुमको अगर application करने का ही मतलब ना पता चले, so there is no use of doing that particular topic. So in today's class, what I'll do is I'll just introduce you with how to solve the questions of continuity. When you are familiar with solving the questions of continuity in the next class or maybe uske baad wale class mein, whichever I find is better for you all, I'll explain you what is the meaning of continuity. Continuity का मतलब क्या होता है वो हम तुम लोगों को समझाएंगे properly, graphically कि ये होता क्या chapter all about. And it is very interesting chapter. Now we have entered to a chapter where we are going to use the concepts of differentiation, but please mark my word that in this chapter and the next topic, that is differentiability, you don't need the concept that level of differentiation. So that's why in the coming week when we will keep the classes of differentiation, please make sure that you complete all the topics of differentiation at least till chain rule. देखो अगर तुमको चेन रूल तक आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, ठीक है ना. तो मैं एक बार आने वाले because as in like almost all other ISC schools they have started their PA1. That's why I've not started. I mean, I'm not doing with this topic this differentiation, right? I mean only 3 classes हुआ अभी तक, total 3 classes जो अभी तक किया मैंने. I know that. But मैं क्या करूँगा आने वाले वीक में Tuesday से, I'll keep from Tuesday, okay? And so that in the coming week chain rule will be clear and then AOD में कोई problem ना, application of derivatives. Now with this let's begin directly continuity where you know that मैंने क्या बोला कि आज के टॉपिक हम लोग का क्या होगा. आज का टॉपिक कि कैसे कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है rather than what is continuity, जो कि हम नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ये चैप्टर 3-4 क्लास का है एंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी एक क्लास का है. So that's why what I'll be doing today is I'll show you how to solve the questions of continuity. What is continuity? I'll be explaining in the 3rd class or 2nd class. That is next class. So everyone, first of all, write down the question. I mean the formula. So write down. A function fx is said to be continuous at x equals to a if and only if. What is the meaning of IFF? IFF का मतलब होता है if and only if को हम लोग IFF से भी डिनोट कर सकते हैं. Okay, so a function fx, you have a function fx. This particular function is continuous at x equals to a only if its left hand limit LHL is equal to right hand limit, that is RHL, is equal to the value of the function at x equals to a. All right, so एक पर्टिकुलर फंक्शन को अगर हम बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस है तो कब कंटिन्यूअस होगा, उसके लिए कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. एक फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए एक पॉइंट पे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, और उस पर्टिकुलर फंक्शन का वैल्यू एट द पॉइंट, तीनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए. बोल सकते हैं हम लोग कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है. तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है. और मेक श्योर दैट दिस चैप्टर इज वेरी इजी, इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है चैप्टर. तो सबसे पहले एक काम करो, फॉर्मूला लिखो. LHL निकालने का फॉर्मूला होता है x टेंड्स टू a minus fx, then we substitute at the place of x a minus h, so this
limit will become h tends to 0 f of a minus h. Similarly, RHS का फॉर्मूला होता है x tends to a plus fx, then we substitute x with a plus h, and so we find that we have limit h tends to 0 f of a plus h. So you just think that this is the formula. Using this formula, we have to start this chapter. Okay, I just brief once again. We are starting continuity where you don't require the concept of differentiation. So I want everyone to concentrate and write on the formula. In today's class, we are just going to understand how to solve the questions of continuity, where the concept of limits, class 11 के limits का concept चाहिए. तो जहां जहां थोड़ा बहुत चाहिए मैं उसके लिए I'll explain you the subs, don't worry. But I want you all to pay attention. Okay, it's a morning time, so I don't want anyone to sleep if your camera is off, and to please pay attention and properly attend the class. Okay, so please write on the formula, Hariya. I'm waiting for you all to write copy on the formula. So I want your attention. Let's take the first question of the day. That you have a function fx, which is suppose 2x square minus 3, and you have a point which is x equals to 1. You have to show that this particular function is continuous at x equals to 1. मतलब 1 पे अपने लोगों को ये फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है. Okay, so in order to do this, we have to start with the first thing, that is we have to find out LHS, that is left hand limit. Now just see the formula, everyone. Using this formula we have to do, just think this way. The formula is x tends to a minus, ठीक है, a minus ऐसे नहीं, a minus जैसे मैंने लिखा है, a यहाँ पे 1 है तो क्या होगा 1 minus. ऑलराइट, ठीक है, ये f of x है, f of x. अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है, देखो फॉर्मूला में बताओ तो मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, पुटिंग x equals to a minus h, putting x equals to a minus h, that is 1 minus h here in this particular sum. So in the next line it becomes, h tends to 0 f of a minus h, means at the place of x we are replacing 1 minus h. Now tell me, if f of x is 2x square minus 3, if f of x is 2x square minus 3, can you tell me what will be f of 1 minus h? Yes, 2 into 1 minus h whole square minus 3. Okay, so we find that कि अगर मैंने बोला कि f of x, f is the name of the function, अगर f of x is 2x square minus 3, and if I ask you what will be f of 1 minus h, then your answer will be at the place of x we have 1 minus h, तो जहां पे x है वहां पे हम लोग 1 minus h रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 times 1 minus h का होल स्क्वायर minus 3 हो जाएगा. ऑलराइट, और ये वाले लाइन के बाद जैसे हम लोग एक लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, वैसे इसको भी सॉल्व करना, ठीक है. और एक चीज देखना, ये चैप्टर में हम लोग लिमिट्स का भी कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं. याद है क्लास 11 में लिमिट सिर्फ किया था हम लोगों ने, बहुत अच्छे से ही किया था, ऐसा नहीं, बट इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है वो अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये चैप्टर, ठीक है. तो देखना एक बार, अब जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिमिट्स में, याद होगा तुम लोगों को मैंने बताया था, योर फर्स्ट टास्क इज to check whether it is in indeterminate form or not. Do you remember this line indeterminate form? याद है तुम लोग को ये बात कि हम लोग चेक करते थे कि वो indeterminate form में है या नहीं. क्या होता है indeterminate form? 0 by 0. You remember that part? अगर वो indeterminate form में होता है, then we solve. कितने methods होते हैं solve करने का, कोई बता सकता है? याद है? अगर वो indeterminate form में होता है तो कितने methods से solve कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई? Few methods. Yes, tell me. 4. Yes, what are those methods? We can solve it by factorization, not any method, but appropriate method we have to apply. Factorization, we rationalize, we apply formula, we apply substitution, and there is one more method, that is LH rule, L Hospital's rule. L Hospitals भी बुलाया जाता है, Hospitals भी बुलाया जाता है. So ये एक और rule है, पर fifth method भी है, ठीक है. तो हम लोग देखेंगे क्या है ये method, but let us see here. तो अगर मैं x के जगह पे 1 लगा दूं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 minus 2 कितना हो गया -1. तो एक बात बताओ, क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में ये क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है नहीं है इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो जब इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होता तो बहुत आसान है अपने लिए,
क्या करना होता है, सिंपली हम लोग वैल्यू पुट करके वो आंसर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में नहीं है। तो ठीक वैसे ही एक बार हमको पता चल गया कि f of 1 - h क्या है, इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, लिमिट्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मतलब लिमिट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे h की जगह 0 लगाता हूँ तो 1 - 0 क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 -3 कितना हो गया, -2। एक बात बताओ, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब 0/0, और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में 0/0 के ऊपर ही डिस्कशन किया गया। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे h की जगह अगर 0 लगाते हैं तो ये 0/0 नहीं है, तो बस नेक्स्ट स्टेप पे आंसर लिख दो, दिस इज योर आंसर, दैट्स ऑल। अब हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। ठीक है, RHL निकालेंगे। RHL को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे मैंने बगल में लिखा है, इट इज x टेंड्स टू a प्लस, a मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस fx। ऑलराइट, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम लोग x के जगह पे a प्लस h रिप्लेस कर देते हैं। हम लोग x के जगह पे a प्लस h मतलब 1 प्लस h से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद वाले लाइन में फॉर्मूला क्या है कि हम लोग h टेंड्स टू 0 लिखते हैं हर एक इक्वेशन में, और उसके बाद x के जगह पे जो 1 प्लस h लगाया है हम लोगों ने वो रिप्लेस करते हैं। ऑलराइट, अब बताओ मुझे सेम वे जैसे कि f of x 2x² - 3 है, f of 1 plus h क्या होगा, सिमिलरली क्या होगा बताओ तो, 2 times 2 into 1 plus h whole square minus 3। तो सिमिलरली ये हो जाएगा 2 times x के जगह पे यहाँ पे 1 plus h है, तो 2 times 1 plus h का होल स्क्वायर -3 हो जाएगा। अब ये सम को हम लोग वैसे ही लिमिट्स के सम ही है, अब ये लिमिट्स का सम, क्या है लिमिट्स का सम, कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है, नहीं है, चेक कर लो। अगर नहीं है तो बस वैल्यू पुट करो एंड दिस इज द आंसर, इट इज -1, चेक कर लो, 0 1 2 2 -3 is -1। एंड लास्ट, तुम लोगों को पता है कि हम लोग LHL RHL दोनों निकाल लिए, तो लास्ट में क्या करना होता है, हम लोग को लास्ट में वैल्यू निकालना होता है फंक्शन का एट द गिवन पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट, इट इज 1। तो एक बात बताओ तो, अगर f of x 2x² - 3 है, f of 1 कितना होगा, f of 1 it will be 2 into 1 square minus 3, that is -1। and since you are finding that left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 1 and all 3 is equal to -1, so we can say that therefore fx is continuous at x equals to 1। ये continuous है, क्या है कंटिन्यूटी, डोंट वरी, just you copy down this sum and try the next sum, just check whether how the function is continuous, how to check whether a function is continuous in the next sum। जो मैंने अभी बताया इस कांसेप्ट को तुम लोग अपने से एक बार करके देखो नेक्स्ट सम में। आई एम गिविंग अ क्वेश्चन व्हिच इज fx equal to x sin x, and suppose you have, let me not take x sin x, let me take very simple sum, 3x minus 1, and let me take a point x equals to 2। everyone do first, you have to test whether this function is continuous at x equals to 2 or not। So we find that we'll start with LHL, left hand limit, where it is x tends to a minus fx, then we substitute x with a minus h, so we will have h tends to 0 f of 2 minus h। now f of x is 3x minus 1, so what will be f of 2 minus h, it will be 3 times 2 minus h minus 1, put h equal to 0, so we have 2 minus 0 2, 3 to just 6, 6 minus 1 is 5। now RHL, x tends to a plus, then we substitute x with a plus h, so we have x tends to 0 f of 2 plus h। now what will be f of 2 plus h, it will be 3 times 2 plus h minus 1। again let's check whether it is in the form 0/0 or not, so it's 3 to the 6 minus 1 5, and finally we have to find f of 2। f of 2 means जहां पे x है वहां पे 2 लगा दो, so we have 3 into 2 minus 1, that is
6 minus 1, which is 5. Since LHL is equal to RHL, is equal to f of 2 is equals to how much? 5. Therefore, fx is continuous at x equals to 2. Is this clear now, everyone? Yes? तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें, कोई इस टॉपिक में? एनीवन? It will be better for you all to keep your video on. I'm telling, and every time, like, keep your video on. Now the third question is, let's say we have a function fx, which is, for example, let's say it is x minus 2. If x is greater than or equal to 2, it is 2 minus x if x is less than 2. Everyone note down. This is a function, okay, for x greater than or equal to 2, fx is x minus 2. मतलब अगर x 2 से बड़ा हो या बराबर हो 2 के, तो हम लोग x minus 2 चूज करेंगे, और अगर मान लो x का वैल्यू 2 से छोटा है तो हम लोग 2 minus x चूज करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से एक बार नोट करना. हम लोग को यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, दैट इज 2. इस पॉइंट पे हम लोग को इस फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है. क्या करना है हम लोग को? इस पॉइंट पे हम लोग को फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है. सो एवरीवन नोट डाउन हाउ टू चेक. I mean, just now you have seen how to check. Let us see this and then let's see इस तरह का सबको कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे. So LHL is x tends to a minus fx. उसके बाद फिर we substitute x with a minus h. Then we find that we have h tends to 0, f of 2 minus h. Now tell me everyone, listen here. पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है? सुनो एक बार ध्यान से सब. मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं. देखो, what does h represents? See, h represents a very very small quantity. That small quantity cannot be represented actually. Means that quantity is not discrete. You understand meaning of discrete? समझते हो discrete का मतलब? जैसे 2, 2.1, 2.2. ये क्या बताओ तो h एक क्वांटिटी है जो कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा. मतलब कितना है पता है? ये छोटा जीरो भी नहीं है. इट इज 0.0000000. मतलब इट इज टेंडिंग. टेंड मतलब वो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट जीरो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इक्वल टू जीरो नहीं है वो. समझ में आया मेरी बात? मतलब इक्वल टू जीरो नहीं है वो, बट वो टेंड्स कर रहा है जीरो की तरफ. ठीक है? h इज अ पॉजिटिव बट अ वेरी वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल क्वांटिटी. क्या बोला मैंने? h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं. h is a positive but a very very small quantity which is tending towards zero. Tending when I say it is not equal to. When we say approaching, मैं approach कर रहा हूं उसके तरफ, मतलब मैं equal to नहीं हो रहा हूं, मतलब equal to that नहीं है वो बोल रहा हूं मैं उसकी तरफ अप्रोच कर रहा हूं. समझ में मेरी बात? मतलब इन शॉर्ट h मतलब क्या? 0.0000 something like that. ऑलराइट, अब एक बात मुझे बताओ, 2 minus h, जैसे मैं अगर बोलूं f of 2 तो क्लियर है. f of 2 बोलो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूं f of 2 minus h तो ध्यान से सुनना मेरे बात. मैं एक काम करता हूं, x के जगह पे दोनों जगह मैं 2 minus h लिख देता हूं. अब तुम लोग मुझे बताओ कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? 2 minus h ग्रेटर देन 2 नहीं, एकदम नहीं. 2 minus h ग्रेटर देन 2 कहीं के सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि h क्या है? 0.0000 समथिंग लाइक दैट. तो 2 minus 0.00001 जो भी होगा तो वो तो 1.9999 समथिंग लाइक दैट. कैलकुलेशन करो तो वो क्या होगा? ग्रेटर देन 2 होगा कभी भी नहीं होगा. बट 2 minus h क्या आएगा बताओ? 2 से स्लाइटली लेस, ऐसे बोलना चाहिए. 2 से स्लाइटली लेस बट क्लोज टू 2. समझ में आ रही बात? 2 minus h is slightly less than 2 होगा या नहीं बताओ? 2 minus 0.00000 क्या होगा? थोड़ा सा 2 से कम, थोड़ा सा, बट क्लोज टू 2, एकदम क्लोज टू 2. तो ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है या ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है? सबको समझ में आना चाहिए. सेकंड वाला. तो अब हम इसमें fx 2 minus x यूज करके और मैं इसका वैल्यू निकालूंगा. ठीक है? अब बताओ मुझे f of 2 minus x इसके लिए क्या होगा? ये कंडीशन के लिए. तो मतलब मैं जहां पे x है वहां पे मैं 2 minus h लगा देने वाला हूं. तो क्या होगा? 2 minus of 2 minus h.
Please everyone note down. Have you understood? मतलब मैंने इसके लिए सेकंड केस सेलेक्ट किया क्योंकि कंडीशन ही सेकंड सेटिस्फाई हो रहा था और जहां पे x है वहां पे मैंने 2 माइनस h लगा दिया तो देखो ये 2 है माइनस 2 माइनस h all right everyone any doubt any question mark now अगर अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे यहां पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं बिल्कुल नहीं 0/0 अलग होता है 0/0 को इनडिटरमिनेट बोलते हैं 0/0 को 0 मत लिख देना 0/0 का आंसर 0 मत लिख देना 0/0 इज अ फॉर्म इट्स अ स्टेट ठीक है 0/0 फॉर्म में जब आए तो इसका आंसर 0 मत लिख देना बट व्हाट इज 0/1 इट इज 0 0/2 0 0/0.1 0 बट 0/0 इज अ फॉर्म अब देखो ये फॉर्म में है तो इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं बट 0/1 आ जाए तो 0 होगा इसको इनडिटरमिनेट नहीं बोलते ये तो रियल नंबर है 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर अब देखो तो यहाँ पे अगर हम h की जगह 0 लगाए तो 2 minus 0 is 2 2 minus 2 is 0 it's not 0/0 so 2 is your answer सॉल्व तब करते हैं जब वो 0/0 फॉर्म में आता है नेक्स्ट RHL मतलब x tends to 2 plus fx उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह पे 2 plus x then we have limit h tends to 0 f of 2 plus h f of 2 plus h means ना अब मैं x की जगह पे 2 plus h लगा देता हूं तो बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे ये मत सोचना कि सेकंड वाला सेटिस्फाई किया पहला वाला के लिए दूसरा वाले फर्स्ट वाला सेटिस्फाई करेगा ऐसा नहीं दिमाग का यूज करो बताओ कौन सा सेटिस्फाई फर्स्ट केस 2 plus h मतलब 2 plus 0 पॉइंट थोड़ा सा अगर हम उसको कुछ भी स्लाइट छोटा क्वांटिटी ऐड कर दें तो ऑब्वियसली इट विल एक्सीड 2 बट नॉट दैट कि इतना ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा कि वो 2 से इतना ज्यादा बड़ा हो जाए वो क्लोज टू 2 ही रहेगा 2 से सटा ही रहेगा समझ में मेरी बात 2 से सटा हुआ मतलब देखो अभी हम क्या अप्रोच कर रहे हैं तुम लोगों को देखना नेक्स्ट डे ये सब जो टर्म यूज कर रहे हैं ना नेक्स्ट डे तुम लोगों को समझ में आएगा हम एक टर्म बोलेंगे नेबरहुड जो नेक्स्ट डे समझ में आएगा आज हम ये लेंगे 2 से क्लोज है देखो 2 से बड़ा है बट 2 से सटा हुआ है 2 का नेबरहुड है 2 के आसपास रहता है ठीक है तो देखना एक बार सो वी फाइंड दैट वी हैव पहला कंडीशन अगर है तो हम लोग x के जगह पे now put h equal to 0 if I put h equal to 0 what is 2 plus 0 it is 2 2 minus 2 is 0 अब लास्ट हम लोगों को निकालना है f of 2 बताओ इसमें कौन सी कंडीशन सैटिस्फाई होगा बताओ फर्स्ट कंडीशन because we find that अगर हम x की जगह 2 लगा दें तो 2 equal to मतलब पहला कंडीशन so since we find that LHL is equal to RHL is equal to f of 2 is equal to 0 therefore fx is continuous at x equals to 2 is this clear copy down this and I'm giving you one more sum I want everyone to try this sum once So LHL and RHL are not equal to f of 2 no sir they are equal to h no it's equal LHL is 0 RHL is 0 f of 2 is also 0 so this part I have a bit of confusion in sir how did LHL become oh okay sir LHL the value of LHL the value of RHL the value of the function at x equals to t is all equal okay now let me just give you the next question and I want everyone to just solve this right now okay इसको अभी सभी को solve करेंगे so right now if x equal to x square minus x minus 6 by x minus 3 for x not equal to 3 equal to 5 if x is equal to 3 you have to show that this function is continuous at x equals to 3 check the continuity of this function at x equals to 3 right
So I want everyone to pay attention because I'm going to solve few questions of limits. क्लास 11 का जो लिमिट्स है वही सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है? तो ध्यान दें। सबसे पहला क्वेश्चन, सपोज मान लो अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 है and the question is x square plus 2 by x plus 2. Now in every question of limits, your first and foremost task is to check whether it is in the form 0 by 0 or not. क्या चेक करना है तुमको कि क्या वो 0 by 0 के फॉर्म में है या नहीं है तो बहुत खुशी है तुमको इस बात का कि 0 by 0 फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। द आंसर इज 6 by 4 दैट इज 3 by। प्रॉब्लम कब होगा, तुमको मेहनत कब करना पड़ेगा, जब वो सम में 0 by 0 फॉर्म हो। तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू 2 है और x स्क्वायर माइनस 4 by x माइनस 2 है। तुम अगर यहाँ पे x के जगह पे 2 लगाओ, इसमें अगर x की जगह 2 लगाओ तो देखो एक बार 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 0 by 0 फॉर्म आ रहा है ना 0 by 0 फॉर्म। तो क्योंकि 0 by 0 फॉर्म आ रहा है तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकता। कैसे? देयर आर सेवरल मेथड्स आउट ऑफ व्हिच वन मेथड इज फैक्टराइजेशन। ध्यान से नोट करना। अगर हम x के जगह पे 2 लगा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, याद है 11 में जो लोग किया है लिमिट्स यहाँ पे, याद होगा मैंने इस तरीके से कुछ बताया था कि अगर हम x के जगह पे 2 लगा रहे हैं, इधर भी x की जगह 2 लगा रहे हैं, मतलब ये 0 by 0 आ रहा है ना। तो एक बात बताओ, अगर x स्क्वायर माइनस 4 x का वैल्यू 2 पे 0 बन रहा है, सो ये क्लास 10 वाला तुमको एक टॉपिक याद है, क्लास 10 वाला टॉपिक याद है कि अगर 2 पे ये 0 बन जा रहा है मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है। डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? x माइनस 2 इसका फैक्टर, डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? याद है तुम लोगों को ये चीज? तो सेम वैसे ही अगर x इक्वल टू 2 पे ये 0 जा रहा है, x इक्वल टू 2 पे ये 0 जा रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है, x माइनस 2 इसका भी फैक्टर है। 2 को लेफ्ट में ले लेते हैं, ठीक है, 2 को लेफ्ट में ले लेते हैं, मतलब 0 by 0 फॉर्म हटाने के लिए, 0 by 0 फॉर्म हटाने के लिए मुझे ऊपर नीचे x माइनस 2 को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। 0 by 0 फॉर्म को हटाने के लिए मुझे ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मुझे x माइनस 2 हटाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे x माइनस 2? लेट अस फैक्टराइज द न्यूमरेटर पार्ट। तो क्या हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। नाउ लेट अस अप्लाई द फार्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा a माइनस b into a plus b, ठीक है। ऊपर नीचे x माइनस 2 कैंसिल कर, ओके। एक बार कैंसिल हुआ, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अगर एक बार कैंसिल हो गया तो देखो तुम लोग को नहीं लग रहा है कि 0 by 0 फॉर्म भी हट गया? चेक कर लो, चेक कर लो, देखो जिसके कारण 0 by 0 फॉर्म आ रहा था, जिसके कारण वो 0 by 0 फॉर्म हटाने के लिए मैंने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया और ऊपर नीचे x माइनस 2 काट दिया। देखो अब बताओ मुझे क्या ये 0 by 0 फॉर्म में है? हाँ या ना बताओ, चलिए प्लीज आंसर। क्या ये 0 by 0 फॉर्म में है? नहीं है 0 by 0 फॉर्म। तो फिर हम लोग x की जगह 2 लगा देंगे तो 2 + 2 ऑलराइट। नाउ इस तरह का ही कुछ कांसेप्ट्स यहाँ पे हम लोग ये सम नंबर 4 में यूज करने वाले, ठीक है। सम नंबर 4 में तो मैं चाहता हूं पहले ये कोई तुम लोग कॉपी कर लो, ये सम के ऊपर ये कॉपी करना, सच दैट कि तुम लोग जब रिवाइज घर पे तुम इसको रिवाइज करोगे ना सारे सम्स को, तो ये सम एक बार तुम कर लो रिवाइज। हम जैसे जैसे जो लिमिट्स का कांसेप्ट लगेगा मैं एक दो सम बता दूंगा लिमिट्स का, एंड देन आई विल स्टार्ट दैट सम जहां पे जो नेसेसरी कांसेप्ट चाहिए क्लास 11 का। तो एक बार फटाफट इसको कॉपी कर लो। नाउ सम नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है, देखना है। सो वी आर फाइंडिंग LHL। So you know LHL is limit. I'm directly writing this line. I hope you understand this. Like why? I mean why I've written this line, right? I think this is clear to everyone. I'm skipping the first 2-3 lines. Yes. सबको क्लियर है या ये वाला लाइन? देखो मैंने डायरेक्ट ये लाइन से स्टार्ट किया। क्लियर है तो? क्योंकि वो पहला 2-3 लाइन लिख के वो बार-बार वो लिख के कोई फायदा नहीं। It's just a formula जो कि हम लोग समझे की बात है। अब देखो एक बार ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे x का वैल्यू 3 - h है, तो मैं यहाँ भी x की जगह 3 - h लगाता हूँ, यहाँ भी 3 - h। अब 3 - h इक्वल टू 3 है, हाँ या नहीं?
3 minus h is equal to 3, yes or no? No sir. Definitely not. 3 minus h, h तो कुछ तो है, ठीक है, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है लेकिन कुछ तो है, 0.000 समथिंग लाइक दैट। तो 3 minus h तो इक्वल टू 3 नहीं हुआ ना, लेकिन 3 minus h नॉट इक्वल टू 3 तो हुआ या नहीं हुआ बताओ? 3 minus h नॉट इक्वल टू 3, यस डेफिनेटली। अब हम ये फंक्शन को यूज करेंगे। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं f of 3 minus h मैं अगर बोलूं, तो फिर जहां पे x है, देखो जहां पे x है वहां पे 3 minus h लगा, तो फिर ये बन जाएगा 3 minus h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 minus h minus 6 डिवाइडेड बाय 3 minus h minus 3। ऑलराइट एवरीवन, ये मैंने जो लिखा वो समझ में आया या नहीं है? अब आगे हम लोग सम को करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अभी हम लोग सेम कांसेप्ट लगाने वाले जो भी मैंने लिमिट समझाया। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे h की जगह 0 लगा दूं, मेरा बात ध्यान से सुनना सब कोई, दिमाग इधर उधर मत करना। अगर मैं h की जगह 0 लगाऊं तो 3 minus 0 is 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 minus 0 is 3, minus 6, 9 minus 9 is 0, तो देखो 0 आ गया, नीचे भी 0 लगाते हैं हम लोग, तो 3 minus 0 is 3, 3 minus 3 is 0। मतलब अपने लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0/0 आने का कारण, 0/0 आने का कारण क्या है बताओ? तो क्या ऊपर नीचे मुझे कॉमन लेके काटना होगा बताओ? टेल मी, स्पीक। x minus 3. प्लीज नोट डाउन, x minus 3 नहीं Sir, h minus 0. h minus 0 is what? h Yes sir. h minus 0 means what? h अभी Yes. अभी इसके पहले क्या बताया था मैंने कि जिसके कारण 0/0 तो इसको लेफ्ट में ले लेंगे हम लोग, तो 0/0 का कारण क्या है? 0/0 x minus 3, इसके पहले वाले एग्जांपल में ऐसा कुछ लिया था मैंने। तो अगर यहाँ पे हम h का वैल्यू 0 लगा रहे हैं तो 0/0 आ रहा है, तो 0/0 तो कारण दिख रहा है डायरेक्ट मुझे, 0 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, 0 तो 0 ही रहेगा। तो ऊपर नीचे मुझे h काटना है, अब काटने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर सिंपलीफाई करके h कॉमन लेंगे, नीचे भी h कॉमन लेंगे, राइट? सो लेट अस टेक एंड डू सिंपलीफिकेशन। Let's do simplification. A minus b whole square क्या होगा? A square तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट सिंप्लीफाई होके आ गया h स्क्वायर माइनस 5h एंड और बाकी सब कट जाएगा, अब डिनोमिनेटर में माइनस h। लेट अस टेक h कॉमन इन द न्यूमरेटर। h अगर हम कॉमन ले लें तो बच जाएगा h minus 5, ऊपर नीचे h कैंसिल कर दो, जैसे कैंसिल हुआ अपना काम जो 0/0 फॉर्म जो हटाना था वो हो गया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पे h है वहां 0 लगा के देखेंगे कि क्या 0/0 फॉर्म हटा है, तो 0 minus 5 is -5 by -1, in 0/0 फॉर्म हटी है, and this is the answer। Similarly find out RHS फॉर्मूला के हिसाब से h टेंड्स टू 0 f of 3 plus h। अब बताओ मैं 3 plus h दोनों जगह मैंने 3 plus h लगा दिया, तो बताओ एक बार 3 plus h equal to 3? No। 3 plus h not equal to 3? Yes, is the first function we will use। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां पे तुमको x दिख रहा है, देखो x 3 plus h है, मतलब राइट में जहां x है उस सारे x के जगह पे 3 plus h रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम h के जगह 0 लगा दें तो देखो वापस से यहाँ 0/0 फॉर्म आ रहा है, चेक कर 0 लगा 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे 0/0 फॉर्म आ रहा है तो मुझे 0/0 फॉर्म हटाने के लिए ऊपर नीचे h काटना होगा, कैंसिल करना होगा, समझ में? ऊपर नीचे h कैंसिल करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट को सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई, कॉमन ले लो, काटो, तो इसको कंप्लीट करो तुम एकदम ऐसे ही a minus b होल स्क्वायर यहाँ पे a plus b होल स्क्वायर, चलो कंप्लीट करो इसको। So we are finding that RHS is also 5 and f of 3, listen here, जब x का वैल्यू 3 होगा तो फिर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 5। ठीक है, ये तो पता है हमको, देखो if the value of x is 3, what is the value of the function? It is 5। So we are finding that since LHS is equal to RHS is equals to,
मतलब सिर्फ स्टेटमेंट पे लिखते रहते हो। ओके, मैं एक और सम इस तरह का दे रहा हूँ, तुम लोग एक बार इसको कंप्लीट करो। एक और सम इसी तरह का है, तो एक बार खुद कंप्लीट करो। See, the question is fx equal to x square minus 25 by x minus 5 for x not equal to 5, ये 10 होगा for x equal to 5. You have to check whether the function is continuous at 5 or not. So देखो एकदम सेम टाइप सम है, ठीक है, इसको फटाफट एक बार करें। So can you tell me one thing, what is LHL in this sum? So 10. 10. So LHL 10 है। I think इसमें किसी को डाउट नहीं होगा शायद, है डाउट? RHL भी 10 आया होगा और f of 5 तो दिया ही है 10 क्योंकि इक्वल है, so it is continuous. All right, now today I'm going to send you PDF, and then from there you will be given few questions to do. Please complete those questions, okay, and please submit your homework. So here I end today's class.